شرکت کر میٹنگ دوران یہ مختلف معاملن حوالہ کتھن دل دن آو تت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ میٹنگ مز موجود افسرن ہدایت دتمت ماہ مبارکس دوران یہ بازرن مز نرخ نامہ ڈنجہ تھونس حوالہ سنجید قدم تلن ضرورت یت زن گران فروشی پہ روٹ لاگن یی تت گھس سحری تو افطار وقتس پہ بجلی تو صاف چناب فراہمی یقینی بناونس حوالہ سنجید قدم تمام محکموں طرف تلن ین یت زن عام لوکن ماہ مبارکس دوران کن قسمک مشکل ویترن پین ماہ رمضان کس سلسلس مز یت وادی ہندن بازرن مز رونق وچھن تو لوک ہینس کنس مز آز دہس مصروف وچھن تت شہر سری نگرس مز میو سبزی تو دویم کھین خوردنی ہند چیز کٕنن والو لوکو طرف ون آمت زِ منڈیو مز تمن میو تو سبزی درٛوگہِ مل پیوان یم کن بازرن مز درٛوجر سپدمت یل زن یمو لوکو طرف ون آو زِ سرکارس پزِ منڈین مز قۭمتن پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ یُتھ زن نہٕ بازرن مز درٛوجر سپدِ تہٕ عام لوٗکھ مشکلن مز ہینہٕ یِن الحمدللہ پچھلے 2 دنوں سے بازاروں میں بڑا رش تھا. ہم نے اپنی تیاری پوری کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ساری کھجوریں موجود ہیں جیسے کہ اجوا ہے, امبر ہے, مبروم ہے, مجدول ہے, ساری کھجوریں آئی ہوئی ہے. اس سال پچھلے سال سے مجھے لگتا ہے زیادہ کھجوروں میں کوالٹی بھی آئی ہوئی ہے, جیسے کہ فلسطین کا کھجور آیا اور ادھر جارڈن کا کھجور آیا ہے, سعودی کا ہوتا ہی تھا اور ایران کا بھی آیا ہے. مارکیٹ میں بہت سی کھجوریں آئی ہے اور لوگوں کا رش بھی بڑا ہے. الحمدللہ جو ڈرائی سلیپ ٹوٹی ہے ہمیں لگا کہ پرسوں جو بارشیں ہوئی ہمیں لگا کچھ کاروبار میں کوئی افیکٹ پڑ گیا, مگر ہمارا کوئی افیکٹ نہیں پڑا. ہمیں اچھی سی بکری ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو لوگ جوش خروش سے آ رہے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے. اس چہل پہل سے ٹھیک حالس مطلب انشاءاللہ رحمان سارے ضرورت چیز ہر کنس ان ضروری بیٚیہِ ماہ مبارک چیز بذٲتی بدل چیز یہ ضروری مارکیٹ کو الگ چیز سہ ضروری کھیون بہترین عمل ات مز تمے یم ات مز کرنی روزہ روزن برابر کٲنٛسہِ خۄداے نہِ آزار واتناوُن کٲنٛسہِ ہُنٛد دھونٛکہٕ دیُن مارکیٹس منٛز چھِ چیٖز گوٚمُت صاف یِم چیٖز چھِ ہر کٲنٛسہِ ووت فٲیدٕ اَمہِ سۭتۍ ماہِ مُبارک چیٖز چھِ بیٚیہِ چھِ یہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ فٲیدٕ بدل چیٖز اَتھ منٛز چھِ عمل صالح کَرٕنۍ صالح عمل نٮ۪ماز چھِ پَرٕنۍ ٹایمَس پٮ۪ٹھ روزدَر چھِ روزُن سحری چھِ کَرٕنۍ ٹایمَس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ گوٚژھ نہٕ واتُن آزار دھونٛکہٕ گوٚژھ نہٕ واتُن کٲنٛسہِ سۭتۍ غلط گوٚژھ نہٕ کَرُن مارکیٹ منٛز أسۍ چھِ کٕنان چیٖز أسۍ چھِ کَران کوٗشِش یَتھ منٛز صاف اَننُک انشاءاللہ رحمان چھِ کَران أسۍ باؤرین صاف مگر یَتھ منٛز چھِ کَران زیادٕ کوٗشِش صاف اَننُک کیٛازِ چھِ آسان روزدَرن کھیوٚن یہِ چھِ کھٮ۪وان شوقہٕ سۭتۍ اِنسان اَتھ منٛز کَران سٲری کوٗشِش صاف درٛوجر چھِ گژھان بیٚیہِ کیٛاہ کہِ مطلب بہٕ وَنَے ژےٚ اَکھ چیٖز وَنہٕ بہٕ اَسہِ وٕچھ اَکھ چیٖز پنٛنہِ فِکرِ منٛز مےٚ وٕچھ پنٛنہِ فِکرِ منٛز مُسلمانَس ییٚمہِ ساتہٕ بوٚڑ دۄہ چھُ آسان اَتھ منٛز چھِ گژھان درٛوجر کیلہٕ ڈَبَس گٔے 2 ہَتھ رۄپیہِ کھٔتۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ کیلہٕ ڈَبَس کوٗتاہ کھوٚت 2 ہَتھ رۄپیہِ وَنہٕ بہٕ مِثال 2 ہَتھ رۄپیہِ کھٔتۍ کیلہٕ ڈَبَس اَدٕ کیٛاہ کَرو أسۍ تہِ أسۍ چھِ مجبوٗر گژھان پَتہٕ کٕننہٕ خٲطرٕ درٛوگ ییٚلہِ بٕتھِ کھٔتۍ 2 ہَتھ رۄپیہِ بِذٲتی گوٚژھ گژھُن یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ اَسہِ سَستہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ گژھان درٛوگ اَسہِ آیٹم ہر کانٛہہ آیٹم گژھان درٛوگ ییٚلہِ نہٕ بٕے یوت چھُس کٕنان ییٚلہِ 2 ہَتھ رۄپیہِ کھٔتۍ کیلہٕ ڈَبَس چھُ لۄکُٹ مَسلہٕ اکھ 2 ہَتھ رۄپیہِ ڈَبَس گٔے درجن کھٔتۍ لگ بگ 20 رۄپیہِ اگر أسۍ اوتانۍ 60 کٕنان درجن یِہوے چھِ کٕنان 100 یِم چیٖز چھِ گژھان بیٚیہِ وٕچھ مےٚ اکھ چیٖز مُسلمانن ییٚمہِ ساتہٕ بوٚڑ دۄہ تَمہِ ساتہٕ کھوٚت اَتھ ہیٚندِ ییٚمہِ ساتہٕ بوٚڑ دۄہ چھُ تَمہِ ساتہٕ چھُ وَسان وۄنۍ چھُ گژھان ہر کُنہِ ہاف ریٹ یِمے چیٖز چھِ باقٕے چھِ بیٚیہِ چھِ آزار واتناوُن کٲنٛسہِ یپٲرۍ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگرن امہ حوالہ کت کران وونمت یدوے ماہ رمضان کے مناسبت جائز میٹنگن ہند سانج سپدمت تت بازرن مز نرخ نامہ ڈنجہ تھونس حوالہ تہ ہدایت جاری کرنا آمت یت زن نہ عام لوکن کن قسمک مشکل ویترن پین. دیکھیے اس پہ پہلے ہی بہت سارے ریویوز ہم نے کر لیے ہے کہ جو رمضان مبارک جو مہینہ شروع ہونے والا ہے کل سے اس کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں. چاہے جو بیسک فیسلٹیز جو ایک بیسک فیسلٹیز ہونی چاہیے جیسے بجلی ہو گیا, پانی ہو گیا, یا جو ہمارے امپورٹنٹ جو حضرت بل ہو گیا, جناب صاحب ہو گیا, ان کی جو آس پاس کی جو سینیٹیشن ہے اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے. سارے ڈائریکشنز پاس کی گئی ڈپارٹمنٹس کو اور اسپیشل فوکس اس بار ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ جو لوگ مطلب کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے زیادہ فروٹس ہو گئے, ڈیٹس ہو گئے, جو باقی فوڈ آئٹمس ہیں ان پہ خاص خیال رکھا جا رہا ہے ہمارے طرف سے. جو فوڈ سیفٹی کی ٹیمس ہیں وہ بالکل مارکیٹ میں ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, سیمپلنگ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس لیول کے ہیں کہ نہیں, اچھے سے رکھا ہوا ہے کہ نہیں, اس میں سارے نارمز فالو کر رہے ہیں کہ نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ہمارے ان کی اویلیبلٹی کو ان کو خاص خیال رکھا گیا ہے.
हमारी टीम्स ग्राउंड पे हैं, जॉइंट इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं। जो जॉइंट इंस्पेक्शन टीम्स हैं जिसमें तहसीलदार हैं, जिसमें लीगल मेट्रोलॉजी के हैं, जिसमें CAPD के डिपार्टमेंट के जो TSOs हैं उनको लगाया गया है और दे आर गोइंग मार्केट टू मार्केट। और इस चीज़ को खास ख्याल रखा गया कि ओवर कोई चार्ज ना करे रेट्स की, चाहे फ्रूट्स की हो, डेट्स की हो, या कहीं और जो फूड आइटम्स हैं हमारे यहाँ पर। कुछ टीम्स को लगाया गया है जो बेकरी आइटम्स हैं हमारे, उन पे ख्याल रखा गया उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ठीक से रहे कि नहीं, क्योंकि हमेशा इसमें कंप्लेंट आती रहती है इस चीज़ की। मुझे लगता है हमारी तरफ से सारी तैयारियाँ आर ऑल रेडी। और इसमें हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जिसमें जो हेडेड बाय ADC श्रीनगर है। उसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, KPDCL के हो गए, PHE के हो गए या SMC के हो गए। वो नंबर शाया किया जाएगा लोगों को, कोई भी अगर इशू कोई होगा किसी जगह पर उस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा इमीडिएटली। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि दैट जो हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं KPDCL से बात करके कि दैट सहरी के टाइम और इफ्तार के टाइम जो है बिजली का जो शेड्यूल है वो ठीक से रहे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वी आर वर्किंग आउट ऑन दैट और उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। श्रीनगर में हमारी टीम जो हमारे पास हैं, हम लोग हिंदवरिस में आज माही मुबारक के सिलसिलस मज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमले मज अन्ना आमत यथ दौरान कईहन दुकानदारन रेड वालन तो पटरी वालन खिलाफ कार्रवाई ते अमले मज अन्ना ये जन जिम्मेदारों तरफ दुकानदारन तंबिया करना आव तिम गन सरकार नरकनामन पर सख्ती सान अमल करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमले मज अन्नई। डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुधारन की हिदायत के अनुसार जैसे आपने देखा पिछले 3 महीने में कंटिन्यूसली मार्केट चेकिंग चलती रही, बट चूंकि कल से माह रमज़ान का बामुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है और आज रात को पहली सहरी खाई जाएगी, तो उसके चलते और जो मौसम में तब्दीली आई, बर्फ़ पड़ी, कि मार्केट में कोई चीज़ कमी पेशी तो नहीं है, कहीं कोई होर्डिंग तो नहीं हो रही है, कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, ताकि जो भी लोग ये फास्टिंग मंथ में फास्ट रखेंगे उन तक जो ज़रूरी अशाएँ हैं वो सस्ते दामों पे, मुनासिब दामों पे पहुँचे और साथ साथ वो साफ़ चीज़ें पहुँचें। उसी के नज़र में आज डिप्टी कमिश्नर कुपवारा की हुक्म के मुताबिक नायब तहसीलदार हंदवारा जो हैं उन्होंने एक पुलिस, म्यूनसिपैलिटी, फूड डिपार्टमेंट के साथ एक राउंड किया पूरे मार्केट का, मेन मार्केट का। एंड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन जो भी था, जो भी हमें वायलेटर्स मिले उनको फ़ाइन हुआ है, और जिनमें कोई मामूली चीज़ें रिप्रीमेंट करने की ज़रूरत थी उन्हें मौके पे ही हिदायत दी गई है कि उन चीज़ों को वो अपने हिसाब से रिप्रीमेंट करें और उनको ठीक करें। इसके अलावा ये 30 दिन जो है और ईद है, तो मेरी तिजारत जो करते हैं दुकानदारन साहबान से सबसे दरख्वास्त है कि वो अपने सामान को चेक करें, कोई एक्सपायरी चीज़ ना बेचें, कोई भी चीज़ में महंगाई ना करें, क्योंकि अगर शिकायत मौसूल हुई तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे मेरे नायब साहब ने मुझे बताया है कि वो उनसे बिलें मांगी गई हैं कि जिस चीज़ पे उन्होंने फ़रोख्त किया उस पर कितना चढ़ा है क्या, और क्योंकि रेट अब सरकार नहीं डिसाइड करती है, ये एसोसिएशन खुद डिसाइड करती है। यह डोडा कस्बस मज आज माही मुबारक के सिलसिलस मज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमले मज अन्ना आमत यथ दौरान कईहन दुकानदारन रेड वालन तो पटरी वालन खिलाफ कार्रवाई ते अमले मज अन्ना ये जन दुकानदारन रेड वालन तो पटरी वालन तंबिया करना आव तिम गन सरकार नरकनामन पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमले मज अन्नई। जीत कुमार है, मैं नायब तहसीलदार डोडा हूँ। इस टाइम स्पेशल इंस्पेक्शन टीम के साथ हूँ। आज हमने मार्केट चेक की है डोडा की, जिसमें हमारे साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, फूड एंड सेफ्टी, हॉर्टिकल्चर, प्लानिंग, मार्केटिंग, मेट्रोलॉजी, और हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी थी। तो इसमें हमने बहुत सारी मार्केट्स चेक की हैं यहाँ पे डोडा सिटी में, और देखा गया है कि यहाँ पे दुकानदारों को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि वो अपने रेट्स जो हैं वो डिस्प्ले करें, ताकि लोगों को रमजान का महीना भी है उस लिए भी, और आगे भी रूटीन वर्क हमारा रहता है ये इंस्पेक्शंस, ताकि लोगों को जेन्युइन रेट्स मिलें। और हमने देखा कि शहर के अंदर कंफ्यूजन काफी ज्यादा रेट्स को लेके, उस पर किस तरह की डायरेक्शन आपने दी है? जो फ्रूट वेंडर्स हैं या आवाम है, उनको क्या मैसेज होगा? इस मुहिम में हमने देखा है कि अगर कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है उनको चालान किया जाएगा, और उनको वार्न भी कर दिया गया है कि अगर वो। देखिए सर, आज की जो विजिट हमने की, इसका गर्जो गायद ये है कि हम पूरे इंश्योर कराएंगे मार्केट में कि पब्लिक को एक अच्छी रेट्स पे अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट्स चीजें मिल जाएं। यही हमारा मंशा है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हमारे ऑफिसरान मौजूद हैं हमारे साथ,
और हमने मोस्ट ऑफ द एरिया सिटी का कवर किया है। और कहीं जगहों पे, कुछ जगहों पे हमने पाया कि रेट्स में थोड़ा वेरिएशन आ रही है, कि ज्यादा रेट्स कर रहा है और क्वालिटी भी ठीक नहीं है। उनको हमने ऑन स्पॉट कुछ चालान्स भी किए हैं और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस भी दिए हैं कि वो प्रॉपरली अपना रेट डिस्प्ले करें। कितने चालान किए हैं? हमने लगभग राउंड 8-10 चालान हमने कर दिए, 8-10। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली जेडबल तनवीर सादिकन आज जराई इबलाग कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी असम्बली मज मेजॉरिटी हासिल तो लूकन कर आमुत प्रैत कह वादगी पूरे करने। जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या जो लेबर क्लास है उनके लिए जहां 3 करोड़ 14 लाख के करीब आज पैसा रिलीज हुआ और हर एक जो इसमें रजिस्टर्ड है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, एक बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छी बातें उठी, कुछ डिमांड्स थे, कुछ कंप्लेंट्स थे और जो इनके यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी कुछ तजवीज़ थे कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बोर्ड है इनका वो कॉन्स्टिट्यूट हो। कुछ महीनों से नहीं हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी और मैं पर्सनली डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जल्द से जल्द इसका जो बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट हो और किसी जो भी कोई लेबर क्लास का है कोई उसके जो पैसा है वो रुकावट ना आ जाए। कंट्रोवर्शियल माहौल नहीं, ये अपने एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे हैं। ये दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी और पीडीपी। कोई लोगों के काम नहीं करने देना चाहता है। जानबूझ के ये महबूबा जी यहाँ से चिल्ला रही है, इतने साल हुकूमत में थी, क्यों नहीं किया कोई ऐसी चीज़ें। यहाँ से बीजेपी वाले पिछले 10 साल से उनके हाथ में हुकूमत है, 5 साल से तो पूरा 6 साल से तो एलजी सरकार थी, यहाँ बीजेपी की सरकार थी। तो क्यों नहीं हम तो उनको सवाल पूछेंगे कि पिछले 6 साल से उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। यहाँ जिस दहान पे हम हैं वो उन्हीं की देन है। और आज अब पीडीपी अपने आप को होलियर देन दाऊ समझती है, अपने आप को अब बहुत बड़ा ये बनाना चाहते हैं। बट मेरा सवाल उनसे ये होगा कि पिछले 10 साल से क्यों नहीं कोई बात की। जब वो वजीर आला थी, क्या तब सिर्फ शॉल एक दूसरे को बांटने थे? तब सिर्फ यहाँ अफ्स्पा लगवाना था, सरफेसी एक्ट लगवाना था, जीएसटी लागू करवाना था। और जब ये डिमांड करती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है ना, काश उनको कॉन्स्टिट्यूशन पता होती तो सेक्रेटेरिएट से जब निकली काश गई होती गवर्नर के पास और कहा होता कि मैं जो प्रेसिडेंस रही है कि वो रिजाइन करे हुकूमत और नया इलेक्शन 6 महीने में, बिल्कुल उसमें वो मेंशन नहीं था। अगर वो होता तो शायद यहाँ इलेक्शन होता और 2019 कभी नहीं हुआ था। तो इसकी सारी जिम्मेवारी महबूबा जी पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपनी मेजॉरिटी है और हमारे पास अपना एक मंशूर है, जिस मंशूर में हमने हर वो एक चीज लिखा है जो लोगों के हित में है। हम कोशिश करेंगे कि वो हर एक चीज, चाहे वो 12 गारंटीज हो या 26 वादे हो, वो पूरा करें। हमें किसी की सीख नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी हो तरीके से हो, वक्त पे हो और अच्छे से हो। असेंबली में बात आ जाने दीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात होगी। कोई भी मुसलमान शराब को यहाँ चलने नहीं देगा, लेकिन असेंबली में बात आए उसके ऊपर बात करें। पहले ही क्यों ये दिमाग में लोगों के डाल रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं आ रहा है। मेरे पास पूरा, या हम लोगों के पास पूरा भरोसा होना चाहिए कि स्टेटहुड आ रहा है। एक तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की एश्योरेंस है, होम मिनिस्टर साहब की एश्योरेंस है, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है। तो हम क्यों रुके? पहले हम कुछ टाइम रुकेंगे, उसके बाद जिस तरह उमर साहब ने कहा प्लान बी प्लान सी हर का। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली हजरत बल सलमान अली सागरन असम्बली मज पेश करना आमसन बिलन भारतीय जनता पार्टी हंदिस बयान हवाले कत करान वोनमुत स्पीकर सद सदारतस मज कौनूनी माहिरन हज अख टीम असम्बली मज काम करान यम जन तमाम बिलन हुंद मुशाहिद कर तिम असम्बली मज पेश करनुक इजाजत दिवान ताहम कैंसो सियासी जमातों तरफ अमे हवाले माहौल बनाने कोशिश करने। देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और जो क्वालिफिकेशंस होगी किसी बिल को पेश करने में, वो स्पीकर सब देख लेंगे। उसके लिए स्पीकर है हाउस में, वो कानून देखते हैं। वहाँ एक टीम बैठी है कानूनदानों की, जो बिल टेबल करने के लिए देखते हैं क्या है। उसके बाद लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, जो इंश्योर करते हैं कि ऐसी कोई बिल ना आए जो खुदा न खास्ता एंटी नेशनल हो। तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए और सनसनीखेज बनाने के लिए लोग बोलते रहते हैं, हमें उसका कोई ये नहीं। बट वी विल इंश्योर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लोगों के मुताबिक, उम्मीदों और ख्वाहिशात के मुताबिक इस असेंबली सेशन में पहला, एक्चुअली रियलिस्टिकली पहला बड़ा सेशन है जहां लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उनका काम है, उनको अपोजिशन में रहना है 5 साल, वो ये करते रहेंगे। ये शायद हम भी करते। हकीकत ये है कि लोगों का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको गवर्न करना और उनको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है। वो आप भी देखेंगे, उसके लिए बड़े जज मीडिया के लोग होते हैं,
आप देखेंगे 5 साल में इनिशियली, इस साल में, और बजट पहला सेशन है हमारा, आप देखेंगे, आप सवाल पूछेंगे, उनको अपोजिशन में रहना, उनको अच्छी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करनी चाहिए। बाकी शैडो कैबिनेट वगैरह इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कानूनी कोई उसमें कोई जवाजियत नहीं है। हाँ, कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, कोई भी बात कर सकता है। उमर साहब ने बहुत बेहतरीन बातें कही, मैं उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो लीडर है हमारे, उन्होंने जो कहा वही फाइनल वर्ड है, उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में कहा। यकीनन आप बहुत सी चीज़ें यहाँ हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, बेशक अगर कोई बात खिलाफ भी करते लेकिन आज़ादी से बात करने की, आज वो नहीं है। आज लोग डर के करते हैं, मसा आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन ताकतों के खिलाफ आपने देखा कोई बोलता है जिनके पास पावर है उन चीज़ों की, लॉ एंड ऑर्डर जिनके पास, उनके खिलाफ कोई बोलता है, मीडिया बोल पाते उनके खिलाफ? नहीं, अभी भी वो डर उनके लिए बराबर है, उन एजेंसीज का, उन इदारों का, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो तो अभी भी अपना दबाव रखे हुए हैं, उसके बोलने की आज़ादी नहीं है। मिला जुला के अब इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही आते हैं, उनको तनकीद करते हैं। तो वो उमर साहब ने सही कहा है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो गैप है ये हम ब्रिज करें इंशाल्लाह। वर्कआउट कर रहे हैं एक बेहतरीन तरीके से, ये बैन लगना चाहिए, इस सेशन में लगे, आगे लगे, उम्मीद करेंगे कि ये बैन जरूर हम इसके हक में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी लेजिस्लेचर इसके हक में है। डिस्कशन क्या होते हैं, बाकी मेंबर्स क्या बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एजेंडा हमारा ये रहेगा मेंबर्स का इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी कि बैन लगना चाहिए। एज ए मुस्लिम इसमें कोई दो राय नहीं। यूटी लद्दाख वाबस्त तलब इलमो तरफ आज श्रीनगर मज खामोश एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान तलब इलमो तरफ लद्दाख इंतजामिया मांग करना आई तिहद घर वातनस हवाल गसन कदम तुलन yin युद्ध जन तिमन मज पद सपदमित खदशात दूर करने yin। जन यमो तलब इलमो तरफ वन आव युद्ध अमे हवाल के यही फिर लद्दाख इंतजामिया मांग करना आई, ताहम आज ताम कहाँ कदम तुलना आमुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल वहाब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्रीनगर में काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ, लद्दाख के काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ फंसे हुए हैं। कुछ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख से कि हमारे लिए कुछ अरेंज करे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में हमने ये अपना प्रोटेस्ट को, अपने अपील को, रिक्वेस्ट को हमने ये किया था। बाकी और हमने यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को जमा किया है कि किस रिगार्डिंग यहाँ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। पर्टिकुलर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ एग्ज़ाम के लिए फंसे हुए हैं। अभी तक हमें स्टूडेंट्स यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स 10-15 स्टूडेंट्स अभी पूछे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स का भी फ़ोन आ रहा है, मगर वो पूछ नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है, काफ़ी दूर है कुछ स्टूडेंट्स, और फ़ोन भी कर रहे हैं हम आने वाले हैं, हमें थोड़ा लेट होगा। हमने बोला कोई बात नहीं, जितने स्टूडेंट्स अभी आए उस हिसाब से हमने अभी आपको बुलाया यहाँ पे। हमारी डिमांड यही है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की हमें कुछ अरेंज करे। जैसे कि करगिल के लिए एक फ़्लाइट जाता है डकोटा, जो उसमें हमें प्रेफर करता है कि पहले स्टूडेंट्स को डालें। ताजदीन है और हमारा ये प्रोटेस्ट करने का यही है कि हम जो है करगिल एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है जितने भी बच्चे यहाँ पे फंसे हैं, हर एक का जो है पर्टिकुलर रीज़न है। किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, किसी का जो है KSSRB का जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का, किसी का वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो जो है जल्द से जल्द जो है कुछ अरेंजमेंट करे, ताकि जो है सब अपने अपने एग्ज़ाम के लिए, जो भी वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे पहुँच जाए बच्चे। हमारी ये रिक्वेस्ट है सर। मेरा नाम आसिया बानो है और मैं द्रास से हूँ, स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे बच्चे सफ़र कर रहे हैं फ्लाइट नहीं मिलने की वजह से, और बच्चों को एग्ज़ाम से, और कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि आप मदद करिए बच्चों की, और जो सफ़र कर रहे हैं एज़ वेल एज़ पेरेंट्स भी यहाँ सफ़र कर रहे हैं, आपको मदद करनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे हैं, अराउंड 20 वही। सर मेरी यही डिमांड है कि फ़्लाइट दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि फ़्लाइट दीजिए। डाक बगल खनबल अनंतनाग मज आज मेंबर असम्बली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी सदस सदारत मज पोषण अभियान हवाले मीटिंग साज करने आमुत, यथ मज ICDS महकम के जिम्मेदारों तो मुलाजिमो शिरकत कर। अत मौके पर कईन कोरियन पोषण अभियान तहत आर्डर दिन आई, तत मेंबर मोशफन वोलमुत यह स्कीम ज़मीनी सोतरस पे अमनावनस हवाल यथन प्रोग्रामन हुंद साज करने युत जन आम लुकन अमि स्कीम हुंद फायदे वाते। हम इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे दे देंगे आपको ये आर्डर्स, और आज इनको हमने आर्डर्स इजरा की और इनकी नई ज़िंदगी जो शुरुआत आज से हो गई इंशाल्लाह रहमान। ये जो पोषण स्कीम है इसको आप कहते हैं, आंगनवाड़ी तो आप नहीं, इसका नाम रहा, इसको पोषण कहते हैं। तो इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए तो ये दिल जान से काम करेंगे, और जो मुख्तार साहब है ये बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में, क्योंकि इन्होंने ये पहले भी यहाँ पे CDPO रह चुके हैं कैमू में, और भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं इनको कि वहाँ पे, और अनकवर्ड एरियाज़ है हमारा
जो अनकवर एरियाज़ है उसके बारे में मैंने मुख्तार साहब को बोला, और मैंने यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा सकीना जी को भी बोला कि अनकवर एरियाज़ को कवर करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आबादी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है। आप सारा ये मतलब एक ही कवर नहीं। फॉरेस्ट महकम तरफ आज बडगाम नर्सरी मज प्रोग्राम साज कर आमुत महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत अत नर्सरी मज लछ वाद मुख्तलिफ किस्मन हंद कुल तैयार करने युत जन कुल मुख्तलिफ जंगलन मज लागन सह हदफ पूरे करने महकम तरफ तय करना आमुत। ये पीर पंचाल फॉरेस्ट डिवीजन में हमारे पास हर एक रेंज में नर्सरी है, एंड टोटल जो डिवीजन की नर्सरी का जो है मिकदार दैट इज 5 इन नंबर। तो उसमें आज की डेट में लगभग 7 लाख प्लांट्स वी हैव देयर, कंप्राइजिंग ऑफ जिसमें कानिफर भी है और ब्रॉडलीवुड भी है, और थोड़ा सा एक सेक्शन है जो हमने हर्ब्स के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी रखा है। तो आपको भी पता ही होगा कि हमारा जो मेन प्रोग्राम जो चल रहा है दैट इज एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें हमें 2.5 लाख का टारगेट दिया गया है। आज तक हमने लगभग 2.10 लाख का टारगेट जो है इनसाइड फॉरेस्ट एरिया। यहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक नर्सरी है। नर्सरी जो होते हैं वो मदर ऑफ द ऑल फॉरेस्ट के होते हैं। फॉरेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट आर द मदर ऑफ द ऑल वाटर रिसोर्स। जैसे हम देख रहे हैं, ये वाटर रिसोर्स जब है तभी हमारा एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, टूरिज्म है। तो उसके लिए सबसे पहले जिस चीज पर हमें फोकस देना है वो फॉरेस्ट पर ही है। फॉरेस्ट को हमने किसी भी तरीके से आबाद करना है। जैसे कि हमारे वली शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अन पोश दिली वन पोश। वन से उसका मतलब यही था कि ये जो हमारा अन्न है ये तब है जब ये फॉरेस्ट है। अन्न से उनका मकसद फूड ग्रेन्स या राइस या दाल रजवा से ही नहीं था, बल्कि अन्न से उन्हें मतलब था जो वाटर के नीचे तह में एक लिविंग थिंग रहता है, उसको भी यही फॉरेस्ट अन्न मुयस्सर करता है। हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ है उन्हें अन्न मुयस्सर करने वाला यही फॉरेस्ट है। गौसिया कॉलोनी कांसीपुरा वरमल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने सवाल कई आई फिर हुकाम जान दिन आई ताहम चुना आज ताम का कदम तुलना आमुद यमकिन मौसमस मज तब्दीली यन स्थिति आम लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने सवाल गसन संजीदा कदम तुलना युत जन लूकन बचन वोल मुश्किल दूर करने। तो जब से जनाब ये कॉलोनी एस्टेब्लिश हुई है मुश्किलात तो तब से है, और बारहा हमने हुकाम अला हुकाम से कई बार हमने गुजारिश की कि हमारे मामला देखे जाए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कभी कोई गौर खोज नहीं किया गया। ठीक है, और इस वक्त आप हालात देख रहे हैं कि जो इस लेन नंबर 4 के हवाले से है, जितने भी यहाँ पे महिलादारान है इस वक्त बाहर निकलने से कासिर है, क्योंकि हालात जो आप देख रहे हैं कि पानी की इतनी मतलब तादाद है, इतनी हैवी स्नोफॉल भी हुआ है, बारिश भी हुई है। ये तो एज फार बलूचिस्तान न्यूज़ का हम आपकी वसातत से गवर्नमेंट के आला हुकाम तक, खासकर R&B से मौदबाना गुजारिश करते हैं, जो अभी हमारे सदर साहब ने भी मतलब जिन मुश्किलात का इजहार किया उन मुश्किलात में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमें वो यही है जो R&B की वजह से हमें हो रही है। उसमें ड्रेनेज का मसला है, सड़कों की ये मैग्डमाइजेशन का मसला है, ये बहुत बड़ी मसले हैं हमें, जिसकी वजह से मामूली बारिश से हमें घरों में पानी घुस जाता है। तो अल्लाह ताला करे और आपकी वसा वादी कशीर मज ये नौजवानों तरफ लकट लकट यूनिट कायम करित अन चोर ज़ेनच कोशिश करने तत खनमो इलाकस मज मुदस्सिर रशीद नावक नौजवानन लकुट मकुट कोशिश कर्मच यथ मज सह कामयाब त सपुद ये जन तिमो वोन जे बेरोजगार नौजवानन पज अन चोर ज़ेनस कसब हेचनस कुन जोन फिरन युत जन तिम जहनी कोफ्तिक शिकार सपदन। सर एक्चुअली कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी फॉरेनर्स की, उस वीडियो को देखकर मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, चलो ट्राई करते हैं। मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई थी, मैंने ट्राई किया, तद बनी का चीज़, और जब वो चीज़ बनी मुझे लगा कि इससे अच्छी भी बना सकता हूँ मैंने उस पर मेहनत की, उस पर प्रोग्रेस किया और आज ये अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है। सर एक्चुअली तो लोगों के रेस्पॉन्स की ही वजह से मेरा काम बढ़ रहा है।
میں نے اسٹارٹنگ میں ویڈیو اپلوڈ کیے, جب ان پہ اچھا خاصا ریئیکشن ملا, بہت ہی اچھا پیار ملا لوگوں کا, مجھے لگا کہ اس میں زیادہ مزہ ہے. تب سے میں نے زیادہ سے زیادہ چیزیں بنانی شروع کی. وادی کشیر مز یہ شین پینہ پتہ وتو پہ شین تلنس حوالہ انتظامیہ طرف قدم تلنہ آئی. تت اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر R&B ڈویژن کوکرناگن امہ حوالہ کت کران وونمت زِ الہ پلہ کوکرناگ کن تمام علاقن مز سڑکوں پہ شین تلنہ آمت تو یدوے کن جائے تلنے آسہ سُہ آز شام تام مکمل کرنے. شکریہ آپ کا. جو برف باری کل ہوئی تو ہم نے کل دن میں ہی سارا جو جوریڈکشن تھا ہمارا, ہم نے لگ بھگ 90% کل دن میں ہی کلیئر کیا تھا سنو کا. جی تو کچھ 1-2 لنک رہ گئی تھی, اس میں آج کام چل رہا ہے, لیبر لگائے ہوئے ہیں, تو آج سارا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو نہیں اس بار لوگوں کو مشکلات کا سامنا بالکل نہیں کرنا پڑا, کیونکہ جو ہی بارش اور برف رک گئی تو ہم نے اسی وقت کلیئرنس اسٹارٹ کی اور ہر جگہ. تو ناظرین اتھ ووت کوشر خبرنامہ دیو اجازت, خدایس حوالہ.